these different types of intermolecular forces of attraction, the strongest one is a hydrogen bond. And we have seen yesterday the definition of hydrogen bond. It is the electrostatic force of attraction between atom of one molecule and more electronegative atom of another molecule. It's called hydrogen bond. It's called hydrogen bond. Do you understand? It is the electrostatic force of attraction between positively charged atom and negatively charged, hydrogen atom of one molecule and more electronegative atom of another. And we have seen the condition to form the hydrogen bond. What is the condition to form the hydrogen bond? Hydrogen should attach to phone. What is phone? Fluorine, oxygen, nitrogen. चांगलं म्हणा once more. Hydrogen should attach to phone. What is phone? Fluorine, oxygen, nitrogen. These are the how many conditions? 3 conditions to form the which bond? Hydrogen bond. Hydrogen bond कितनी कंडीशन है? 3. First, hydrogen should attach to fluorine, oxygen, nitrogen. Once more, hydrogen should attach to fluorine, oxygen, nitrogen. Do you understand? Keep in your mind, hydrogen should attach to more electronegative atom. That is what? Fluorine, oxygen, nitrogen. ठीक है? Fluorine, oxygen and nitrogen. तो ये है बच्चों phone. What is phone? चांगलं सांगा. Fluorine, oxygen, nitrogen. ठीक है? Once more, what is phone? Fluorine, oxygen, nitrogen. चलो समजलं? कळलं? कोणाला काही प्रॉब्लेम? Any doubt? चलो next. As we have, this is the phone. That is what? Fluorine, oxygen, nitrogen. ठीक है? Fluorine, oxygen, nitrogen. That fluorine, oxygen, nitrogen is the phone. अब हम देखेंगे इस फोन में क्या हो रहा है. किसमें क्या हो रहा है? फोन में. This is the fluorine, oxygen and nitrogen. As we have, this is the fluorine, oxygen and nitrogen. अब मैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपको बताता हूं. दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज आल्सो अल्कोहल. बताओ किसकी ज्यादा है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. इन दोनों में किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन. सो इट कैरी डेल नेगेटिव और इस कैरी डेल पॉजिटिव. डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव. बीच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. अरे है ना? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है? हाँ या ना? बिकॉज हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रॉन. बताओ क्या कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए? हाइड्रोजन शुड अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फोन. तो फोन में का कौन है? वो ऑक्सीजन. तो क्या फॉर्म कर सकता है? अरे हाँ या ना? तो हाइड्रोजन बॉन्ड. बट दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल. बराबर. सो इट इज अ व्हिच हाइड्रोजन बॉन्ड? Intermolecular hydrogen bonding. Heading 2, types of hydrogen bonding. Types of hydrogen bonding. Types of hydrogen bond. Types of hydrogen bonding. ठीक है? Among the different types of hydrogen bonding, ये एक टाइप है. That is the intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. ठीक है? देखो. The hydrogen bond formed between the 2 molecules. The hydrogen bond formed between the 2 molecules is called intermolecular hydrogen bond. The hydrogen bond formed in between the 2 molecules is called
intermolecular hydrogen bond. The hydrogen bond formed in between the two molecules is called intermolecular hydrogen bond. तो किसको कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? डू यू अंडरस्टैंड? सारे बोलो वंस मोर. व्हाट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू molecules. It's called intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लेना. अब यहां पे आप देख सकते हो, दिस इज अ अल्कोहल. ठीक है, अब ये मैं वाटर का एग्जाम्पल ले रहा हूं. वाटर, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल. ये वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों. ठीक है, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ another water molecule, and this is which molecule? Water molecule. And this is the number of different water molecules. बोलना मत बच्चों. These are the different water molecules here, and you know very well in between this water molecule what happened? Is more electronegative or less electronegative? More electronegative. So it can be positive. I don't know. And oxygen? Oxygen? ये बॉन्ड की वजह से अभी ये बॉन्ड का हो गया, ये बॉन्ड की वजह से. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. ठीक है, नेक्स्ट इधर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाँ इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाँ डेल पॉजिटिव. हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन, अच्छा इधर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड वी हैव टू कॉन्सेप्ट डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, which bond, which bond, which bond, which bond. This is a single water molecule, and this लाल वाले bond is a which bond? Hydrogen. So the single water molecule can form maximum how many hydrogen bond? How many? दिख रही है ना आंखों से? हाँ, तो कितने? 4. ध्यान में रखना. ठीक है, ग्रेट कॉन्सेप्ट. मार्जिन के ऊपर a single water molecule can form maximum 4 hydrogen bond. ग्रेट कॉन्सेप्ट मत करना, कॉन्सेप्ट करना सिर्फ. ठीक है, once more, a single water molecule can form 4 hydrogen bond. A single water molecule can form 4 hydrogen bond. एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4. बार बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे. A single water molecule can form 4 hydrogen bond. A single water molecule can form 4 hydrogen bond. ठीक है, once more, a single water molecule can form 4 hydrogen bond. So this is a single water molecule we have, and this single water molecule can form how many hydrogen bond? 4 hydrogen bond. तो बताइए बच्चों मुझे एक बात,
ये वाटर है, लेकिन ये कौन है? सेम है एग्जैक्टली, लेकिन ये कौन है? लेकिन ये एग्जैक्टली सेम, लेकिन ये कौन है? ये एग्जैक्टली सेम, लेकिन ये कौन है? ये तो एग्जैक्टली सेम। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म विद इन एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल, उसी के साथ, उसी खुद खुद का ही मॉलिक्यूल है उसका, कोई डिफरेंस नहीं है ना। और एक दो वर्ड ध्यान में रखना, सेम सेम, और एक वर्ड ध्यान में रखना, सेम मतलब हो तो पढ़ा है ना, और डिफरेंट हेटेरो, पता है। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, बट टू मॉलिक्यूल्स आर एग्जैक्टली सेम इन बिटवीन टू। तो इंटर, अभी तो बोला ना दो के बीच में, इसलिए इंटर कॉन्सेप्ट भी लिखा है हमारे पास, आई थिंक इन बिटवीन टू, नहीं लिखा होगा तो लिख लेना, इन बिटवीन टू इंटर कॉन्सेप्ट है, वंस मोर इन बिटवीन टू इंटर, इन बिटवीन टू इंटर, इन बिटवीन टू इंटर, इंटर। अरे थकले का रे पहिल्याच लेक्चर मध्ये, ठीक है, वंस मोर इन बिटवीन टू, इन बिटवीन टू, इन बिटवीन टू, इन बिटवीन टू, इन बिटवीन टू। डू यू अंडरस्टैंड? ध्यान रखेंगे, इन बिटवीन टू, इन बिटवीन टू, तो दो के बीच में है, इन बिटवीन टू है, इन बिटवीन टू तो इंटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर इन बिटवीन टू इंटर, इन बिटवीन टू इंटर, तो दो के बीच में इंटर, दो मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म होने वाला ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। वंस मोर क्या है बच्चों? ये हाइड्रोजन बॉन्ड काय के बीच में फॉर्म होने वाला? दो मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म होने वाला क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसीलिए हम इसको कहेंगे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। Why this hydrogen bond is called intermolecular hydrogen bond? Do you understand? समझ गए बच्चों? सारे बोलो once more, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। So what do you mean by this intermolecular hydrogen bonding? Do you understand? चलो बोलो once more, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है मैडम, टाइप करके हेडिंग दिया था क्या हमने? हाँ ठीक है, टाइप लिखो, टाइप इंटर, एक मिनट, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, लेकिन जो दो मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म हो रहा है वो दोनों मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम सेम, होमो, और इसीलिए इसका नाम रखेंगे होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे बच्चों इसको? होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इट इज कॉल्ड होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इट्स नेम इज व्हाट? फर्स्ट टाइप है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, फर्स्ट टाइप होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फर्स्ट टाइप है। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म विद इन अ टू सेम मॉलिक्यूल्स व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म within a two same molecule when hydrogen bond is formed within a two same molecules। ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बच्चों किसके बीच में? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, then we say it is a homo intermolecular hydrogen bonding। ठीक है, देखो, when hydrogen bond is formed within a two same molecule, when hydrogen bond is formed within a two same molecule, then it is called homo intermolecular hydrogen bonding। when hydrogen bond is formed
within a two same molecule. ठीक है, when hydrogen bond is formed within a two same molecule, then it is called homo intermolecular hydrogen bonding. कौन सी बॉन्डिंग बच्चों? होमो इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कळलं सर्वांना? चलो वन्स मोर. व्हेन, चांगलं बोला, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म विदिन अ टू और इन बिटवीन टू सेम, विदिन लिहिलं का तुम्ही? सॉरी, इन बिटवीन करा. इन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल, इन बिटवीन टू लिहिलं ना बन, in between two same molecule, then it is called homo intermolecular hydrogen bonding. Draw this. Draw केलं? कुठं चमक रहा? इकडे चमक रहा? और ठीक है. So when the hydrogen bond is formed within a two same molecule, then we say it is the homo intermolecular hydrogen bonding. कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों? होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है तो फिर क्या कहेंगे? हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, और इसमें आपको इंडिकेट करना है कि अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड. और ऐसी ज्योमेट्री को अगर देखा जाए तो ये सेंटर में ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है. कौन सी ज्योमेट्री दिख रही है? टेट्राहेड्रल. तो इट फॉर्म्स द टेट्राहेड्रल जॉ इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. इट फॉर्म्स विच ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, ध्यान रखेंगे. वंस मोर, it forms the which geometry? Tetrahedral geometry. It forms the tetrahedral geometry. समझे? When hydrogen bond is formed in between two same molecule, then when hydrogen bond is formed in between two same molecule, then it form homo intermolecular hydrogen bonding. कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डू यू अंडरस्टैंड? कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों? होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. समझ लो. नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट लिखेंगे. चलो हो गया. अब लिखो हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर. इधर एक बात देख, इनके ऐसे बॉन्ड बनने की वजह से, कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड. ये ऐसे बनने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं और वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. किसके लाइक? केज लाइक. डू यू नो केज? पिंजरा. ठीक है, वो गाना सुना होगा ना आपने? नहीं सुना? जाने दो फिर. ठीक है, नहीं जाने दो अभी. केज तो बताया ना. हाँ, तो वो मेरे को भी नहीं याद आ रहा. ठीक है, तो उड़ जाएगा पंछी रहेगा पिंजरा खाली. नहीं सुना है? नहीं, मजा वाला गाना ही नहीं है, नॉलेज वाला गाना है. ठीक है, हर चीज मजे के लिए नहीं होती. ठीक है, हाँ, पर इधर देखो. हाँ देखो, तो लिसन, नहीं बहुत बढ़िया गाना है, जिंदगी के ऊपर है. ठीक है, मैं सुनाऊंगा आपको कभी. अभी पिंजरा देखते हैं अपन. तो हैव यू सीन द पिंजरा? ठीक है, तो पिंजरे में कौन रहता है? पंछी. तो पिंजरे में पंछी रहता है और पिंजरा अगर टूट जाए, मतलब ऐसा पंछी निकाल के, ठीक है, तो क्या होगा? पंछी पहले उड़ाया है, क्या होगा बताओ? वॉल्यूम कम हो जाएगा. अरे पिंजरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम. अगर पिंजरे के बॉन्ड तोड़ दिए,
पिंजरे के बॉन्ड तोड़ दिए, तो पिंजरे के अंदर क्या है, वो उड़ गए, वैकेंट स्पेस। क्या है पिंजरे के अंदर, बराबर, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम कैसा है, ज्यादा। जब पिंजरा टूट जाए तो वॉल्यूम कम, और जो मास है वो जितना के उतना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम इज द कंडीशन हियर। ये पिंजरा बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने इसकी वजह से ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर उधर बन जाता है, क्योंकि ये भी इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ना, ये भी बनाएंगे इधर, ये भी बनाए, सब बनाएंगे, तो ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड बिकॉज ऑफ फॉर्मिंग दिस केज लाइक स्ट्रक्चर वॉल्यूम बढ़ जाता है केज बनने से। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड लो टेम्परेचर पे बनते हैं, मतलब ये आइस में होते हैं, लेकिन जब हम आइस को गर्म करते हैं तो उसके अंदर के बॉन्ड और पिंजरा टूट जाता है। पिंजरा क्या होता है, टूट जाता है, और पिंजरा टूट गया तो वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन मास जैसा के वैसा। फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज, डेंसिटी। समझे? वंस मोर, वॉल्यूम डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, वॉल्यूम डिक्रीज एंड डेंसिटी इंक्रीज। तो इसलिए वाटर की डेंसिटी आइस से, अच्छा पहले तो बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की कि आइस की? आइस की ज्यादा होती है। आइस सॉलिड है ना और वाटर लिक्विड है, तो किसकी ज्यादा? और तो बताना किसकी ज्यादा? आइस की डेंसिटी। कौन है आइस की डेंसिटी ज्यादा वाले? अच्छा, वाटर की ज्यादा वाली कोण आहे? बाकीचे कुठं राहतात तुम्ही? आईस पाहिला नाही का कधी जिंदगी? हा, कधी ते ग्लास मध्ये आईस टाकून पिले नाही का तुम्ही? पीत नाही का तुम्ही? अरे आईस टाकून पीत नाही कधी? अरे यार, आपण थंड थंड छान ताक घेतो, त्याच्यात आईस टाकतो, पीत नाही तुम्ही? सरबत घेतो लाल लाल किंवा ते कोणचं रसनावाला होते, त्याच्यात आईस टाकतो, पितो, पीत नाही तुम्ही? मग ते आईस कुठे जाते, खाली का वरच राहते? तुम्ही कधी लस्सी वगैरे पिली नाही का? पिले आहे ना? मग कुठे जाते आईस? वर्दे, वो उधर जाना न्यू इंग्लिश के पास, वो पिए क्या आपने? हाँ ठीक है, बचपन की लस्सी, ठीक है, तो सस्ते में मस्त, ठीक है, तो हाँ, तो उसमें आइस डालते नहीं डालते? आजकल वो मशीन निकल गई तो वो घिस के डालते, इसलिए तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन हमारे वक्त ऐसे ही डालते थे फोड़ के, ठीक है। तो वो जो आइस रहता था ऊपर रहता था, कहाँ रहता था? ऊपर, मतलब अभी नीचे नहीं रहता, अभी ऊपर ही रहता, घर जाके डाल के देखना पानी में, ठीक है। तो आइस कहाँ रहता है? ऊपर, तो आइस की डेंसिटी कम, और ऊपर जो रहता है उसकी कम रहती, जिसकी कम मतलब वो हल्का, हाँ। तो बताओ आइस कहाँ रहता? ऊपर, और पानी मतलब वाटर की डेंसिटी ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि जब वो आइस था, जब वो आइस था उसका वॉल्यूम ज्यादा था, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा थे, अरे उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा थे जब वो कौन था? आइस था, बराबर। जब वो आइस था तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा थे, जब हमने उसको गर्म किया उसके बॉन्ड टूट गए, उसका पिंजरा टूट गया, और जो एक दूसरे से दूर गए थे वो पास आ गए, वॉल्यूम डिक्रीजेस, डेंसिटी increases. Do you understand? So always keep in your mind
Why ice float on surface of water? आइस वाटर के सरफेस के ऊपर क्यों फ्लोट करता है? डू यू अंडरस्टैंड? समझे क्या? तो लिखो, बिकॉज ऑफ द केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म इन आइस, बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म इन आइस due to more hydrogen bond, because of cage like structure form in ice, because of cage like structure form in ice due to more hydrogen bonds, because of cage like structure form in ice due to more hydrogen bonds, due to more hydrogen bonds. It has more volume. But when ice is heated, but when intermolecular hydrogen bonding, हेटेरो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताओ टाइम में क्या डालते हैं? अपने पास एक गिलास पानी है, बताओ उसमें क्या डालते हैं? क्या? ग्लूकोज डालते हैं। और क्या डालते? छोटा सा बताओ, ग्लूकोज बहुत बड़ा है, 6 कार्बन है उसमें। सॉल्ट डालते, उसमें कार्बन ही नहीं है। अल्कोहल डालते, ठंडा है, धन्यवाद, गरम चाहिए, ठीक है। पानी आ गया, ठीक है। तो देखो सर, हमारे पास एक डब्बा पानी है, सॉरी एक पानी का मॉलिक्यूल है, एक डब्बा है, डब्बा या ग्लास, ये है पानी। पानी डल और पानी में डाला अल्कोहल। कौन सा डालते हैं? मिथिल की इथिल? इथिल नहीं, मिथिल डालते, छोटा नहीं मिथिल डालते हैं, विषय ही खत्म कर देते, ठीक है। तो लिसन, डू यू नो मिथिल अल्कोहल? बताया था क्या मैंने? क्या? हाँ, इट इज हाईली पॉइजनस, मिथिल अल्कोहल। सो डल नेगेटिव, डल पॉजिटिव, बीज बॉन्ड, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म हुआ कि डिफरेंट? अच्छे से बोलो। Hydrogen bond is formed within a two different molecule. Hydrogen bond is formed within a two different molecule. Same molecule के बीच में हुआ तो होमो, और डिफरेंट के बीच में हुआ तो हेटेरो। तो अंग्रेजी में डेफिनेशन क्या रहेंगी? When hydrogen bond is formed in between two different molecule, it's called hetero intermolecular hydrogen bonding. Now, when hydrogen bond is formed within a two different in between, have within a शेते कुठे, ठीक है? When hydrogen bond is formed in between TWO2, in between two different molecules. When hydrogen bond is formed in between two different molecules. Once more, when hydrogen bond is formed in between
two different molecule, then then it is called hetero intermolecular hydrogen bonding. चांगलं सांगा once more. When hydrogen bond is formed in between two different molecules, it's called hetero intermolecular hydrogen bonding. हाँ, मिथिल अल्कोहल में पानी डाला, मिथिल अल्कोहल में पानी डाला, हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पानी में पानी डाला, मिथिल अल्कोहल में मिथिल डाला, मिथिल अल्कोहल में इथिल अल्कोहल डाला. समझे? देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिस्ट्री है. देखो, हम जो भी खाते हैं वो खाने का क्या करना है, अंदर जाके और कंबाइन करने की तोड़ना है, तोड़ना है. और तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी. और जब हम खाना खाते हैं और उसके ऊपर चिल्ड पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में जो भी एसिड सीक्रेट हुआ वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और वो हीट रिलीज करता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट रिलीज होती है. तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो खाने को पचाने के लिए, अंदर हीट चाहिए. और हम जैसे भी खाना खाए और खाना खाए बराबर अगर हमारे बॉडी में हमने ठंडा पानी पी लिया और चिल्ड वाला, तो जो भी हीट रिलीज हो रही है खाने को तोड़ने के लिए, वो हीट क्या हो जाएंगी? न्यूट्रलाइज हो जाएंगी. और हीट न्यूट्रलाइज हो जाएंगी तो जो हम खाना खा रहे हैं वो टूटेगा नहीं, और वो टूटेगा नहीं तो वो सड़ेगा. और मतलब जो भी टूटेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो फिर उससे क्या आएंगी? बास. फिर उससे निकलेंगी गैसेस, और वो गैसेस निकले और कहां से निकलेंगी, ठीक है. तो ध्यान में रखो, ठीक है. यस. और वो गैसेस अपने हार्ट में जाएंगी. हार्ट में जाएंगी तो क्या करेंगी? हार्ट अटैक. एक दिन में नहीं, कुछ दिनों में. दिमाग में जाएंगी तो सर दर्द करेंगी. पूरे बॉडी में जाएंगी तो बोले बॉडी पेन हो रहे हैं, ठीक है. ये सब करेंगी. इसलिए ज्यादा चिल्ड पानी पीना नहीं चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड? वो फ्रीजर की बटन आप चालू करके रखते हैं, ठीक है कि नहीं? तो मैं कभी नहीं पीता फ्रीजर का पानी. क्यों? ठंडा पानी नहीं पीता मैं. नॉर्मल पानी तो नहीं पीता, गर्म पानी पीता हूँ. एकदम बढ़िया बॉईल किया हुआ जो गुनगुना पानी होता है वो पीता हूँ, ठीक है. तो ये सब है, समझ गए? तो ध्यान रखेंगे. और महीने बहुत सारे लोग हैं जो गुनगुना पानी पीते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा डाइजेशन के लिए मदद करता है और सारी चीजों के लिए मदद करता है, ठीक है.